میرے چینل قدیم کو لائک زمانے شیئر میں اور خراسان کے سبسکرائب کریں ایک اور خوشحال بیل آئیکن شہر کو میں دبانا ایک مت بھولیں۔ نہایت امیر مگر دانا تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس کی اصل محبت اور فخر اس کا واحد بیٹا سفیان تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے نہ صرف تجارت کے اصول سکھاتا بلکہ زندگی کے راز بھی سمجھاتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، بیٹا، مال و دولت بادل کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، کبھی ساتھ ہوتے ہیں کبھی غائب، مگر عقل، صبر اور کردار وہ خزانہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سفیان باپ کی ہر بات ادب سے سنتا، مگر جوانی کی بے فکری اس کے دل میں بھی موجود تھی۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ایک رات حارث نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، جب تم شادی کرو تو اپنی دلہن سے ایک سوال ضرور پوچھنا۔ بتاؤ، ایک سکہ دو سکوں سے بہتر کب ہوتا ہے؟ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتی۔ سفیان نے سر جھکا کر وعدہ کیا کہ وہ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ شادی کی رات اس نے نرمی سے وہ سوال پوچھا۔ دلہن نے بہت سوچا مگر جواب نہ دے سکی۔ سفیان کا دل بجھ سا گیا۔ اسے باپ کی نصیحت یاد آئی اور اس نے صبح ہوتے ہی اسے رخصت کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر کسی کو اصل وجہ معلوم نہ ہوئی۔ چند ماہ بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اس بار لڑکی نہایت ذہین اور تعلیم یافتہ تھی۔ سفیان کو یقین تھا کہ شاید یہی وہ عورت ہو جس کا ذکر اس کے باپ نے کیا تھا، مگر جب اس نے وہی سوال کیا تو وہ بھی جواب نہ دے سکی۔ اب سفیان کے دل میں ایک عجیب بیزاری پیدا ہونے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے ہی نہیں جو اس راز کو سمجھتی ہو۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ ایک نہایت حسین لڑکی اندر آئی۔ اس کی گفتگو میں اعتماد تھا اور انداز میں عجیب کشش۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ وہ کسی سودا سلف کے بہانے آئی تھی، مگر باتوں باتوں میں اس نے ایسی ذہانت دکھائی کہ سفیان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کبھی کپڑا خریدنے آتی، کبھی خوشبو، کبھی صرف حال پوچھنے۔ آہستہ آہستہ اس کی آمد و رفت بڑھنے لگی اور سفیان کا دل اس کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا۔ آخر ایک دن اس نے دل میں سوچا، شاید قسمت نصیحتوں سے نہیں چلتی، شاید یہی میری قسمت ہے۔ چنانچہ اس نے نائلہ سے شادی کر لی۔ اس بار اس نے ارادہ کیا کہ وہ باپ والا سوال نہیں پوچھے گا، مگر شادی کی رات دل کی بے چینی نے اسے مجبور کر دیا اور اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کر ہی لیا۔ نائلہ مسکرائی، سوچا، پھر خاموش ہو گئی۔ اسے جواب نہ آیا۔ سفیان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس بار اس نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے نہ اسے طلاق دی، نہ کسی سے کچھ کہا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ شاید نصیحت کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ چند دن بعد حارث نے بہو کو تنہائی میں بلایا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ وہ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گیا، دیوار کا ایک پتھر ہٹایا اور اندر سے ایک چھپا ہوا صندوق نکالا جو سونے اور جواہرات سے بھرا تھا۔ روشنی پڑتے ہی خزانہ جگمگا اٹھا۔ نائلہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چمک بھی آ گئی۔ حارث نے کہا، یہ خزانہ میں نے سفیان کے لیے چھپا رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی نرم دلی کی وجہ سے سب ضائع نہ کر دے۔ اگر کبھی اس پر تنگی آئے تو تم اسے یہ راز بتا دینا۔ میں تمہاری سمجھداری پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نائلہ نے فوراً وعدہ کر لیا، مگر اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو چکا تھا، لالچ۔ وہ پہلے سے زیادہ فرما بردار بن گئی۔ سسر کی خدمت، شوہر سے محبت، نرم لہجہ، سب کچھ پہلے سے بڑھ گیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں خزانے کی چمک بسی ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد حارث کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے نائلہ بدلنے لگی، اس نے مہنگے کپڑوں، زیورات اور تحفوں کی فرمائشیں شروع کر دیں۔ سفیان محبت میں اندھا ہو کر سب پورا کرتا رہا۔ تجارت سے اس کی توجہ ہٹنے لگی، گاہک کم ہونے لگے، نفع گھٹنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی جمع پونجی ختم ہونے لگی، گودام خالی ہونے لگے، مگر نائلہ نے خزانے کا ذکر نہ کیا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب سفیان کے پاس کچھ نہ بچا۔ اسے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہو کر کام مانگنا پڑا۔
और इसी दिन से नायला के लहजे की नरमी खत्म हो गई। वक्त गुजरने के साथ सुफियान की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जो शख्स कभी काफिलों का मालिक था, अब उजरत के चंद सिक्कों के लिए मजदूरों की कतार में खड़ा होता। उसके कपड़े सादा हो चुके थे, चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी, मगर दिल में अब भी सब्र बाकी था। नायला के रवैये में अब कोई नरमी न रही थी। वो उससे सर्द लहजे में बात करती, अक्सर ताने देती और कहती, अगर तुम में काबिलियत होती तो आज ये हाल ना होता। सुफियान खामोशी से सब सुनता रहता। उसे अपने बाप की नसीहत याद आती तो दिल में चुभन सी होती। एक दिन वो मजदूरों के साथ खड़ा था कि एक मुअज़्ज़ज़ बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा। उसने सुफियान को गौर से देखा, फिर करीब आकर बोला, क्या तुम हारिस के बेटे नहीं हो? सुफियान ने चौंक कर सर उठाया। वो शख्स उसके बाप का पुराना दोस्त था, हिकमत और तजर्बे में मशहूर। सुफियान ने शर्मिंदगी से अपनी पूरी हालत बयान कर दी। बूढ़े ने हैरत से कहा, तुम्हारे बाप जैसा दाना आदमी अपना सारा माल यूं ही नहीं छोड़ सकता था। मुझे यकीन है उसने कहीं न कहीं कुछ महफूज रखा होगा, और ये भी मुमकिन है कि उसने वो राज तुम्हारी बीवी को बताया हो। ये सुनकर सुफियान के दिल में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि नायला इस सवाल का जवाब ना दे सकी थी, और फिर भी वो उससे शादी कर बैठा था। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरा गुमान दुरुस्त है तो तुम्हारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। तुम उसे आजमाओ, मगर चालाकी से। उसने सुफियान को एक तदबीर बताई। सुफियान घर वापस आया और नायला से बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं सोच रहा हूँ ये घर बेचकर कोई छोटा सा मकान ले लूं। तुम चंद दिन के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाओ ताकि मैं सब इंतजाम कर सकूं। नायला के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन हो गया कि अब घर भी उसके हाथ आने वाला है। वो फौरन राजी हो गई और अपना सामान बांधकर मैके चली गई। जैसे ही वो गई, सुफियान ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। हर कमरा, हर दीवार, हर संदूक, मगर कहीं कुछ ना मिला। रात ढलने लगी, वो थक कर बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी जो दीवार के एक सुराख में घुस रहा था। तजस्सुस में उसने वो पत्थर हटाया और अंदर सोने की चमक देखकर उसकी सांस रुक गई। वही खजाना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर बाप के लिए दुआ की। फिर उसने सारा खजाना निकाला, महफूज जगह छुपा दिया और उस सुराख में मिट्टी और कूड़ा भरकर पत्थर दोबारा लगा दिया। अगले दिन उसने वाकई घर बेचने का ऐलान करवा दिया। लोग जमा हुए, बोली लगने लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत सुफियान खामोशी से हट गया। चंद दिन बाद नायला इस कसाई के साथ घर में आई। उसने उसे कहा, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ खजाना छुपा है। तुम मुझे घर बेच देना और मैं तुम्हें तुम्हारी रकम से ज्यादा दूंगी। कसाई की आंखों में लालच चमक उठा। नायला उसे दालान में ले गई, पत्थर हटाया, हाथ अंदर डाला, मगर अंदर सिर्फ मिट्टी और कचरा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बार बार हाथ डाला, मगर कुछ ना मिला। कसाई को जब समझ आया कि वो धोखा खा चुका है तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। नायला जमीन पर बैठ गई। उसके दिल में पहली बार पछतावा पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया है, दौलत, इज्जत, शौहर, सब। उधर सुफियान ने काजी के पास जाकर उसे तलाक दे दी। कुछ ही अरसे में कसाई भी बदनामी और नुकसान के बायस दिवालिया हो गया। लोग उससे खरीदारी छोड़ गए क्योंकि वो एक साजिश में शरीक रहा था। सुफियान ने खजाने को संभाल कर रखा और उसमें से एक सिक्का भी खर्च ना किया। उसने मेहनत से दोबारा तिजारत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार पहले से ज्यादा बढ़ने लगा, मगर उसके दिल में एक खौफ बाकी था, शादी का खौफ। वो सोचता, अगर हर चेहरा बदल सकता है तो भरोसा किस पर किया जाए। एक दिन वो उसी बूढ़े दोस्त के घर गया जिसने उसे मशवरा दिया था। उसने मोहब्बत से इस्तकबाल किया और अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी, मेहमान के लिए कहवा लाओ। कुछ लम्हों बाद एक बाहया लड़की अंदर आई। उसका नाम मरियम था। उसके चेहरे पर सादगी और निगाहों में शर्म थी। कहवा पेश करते हुए उसके हाथ हल्के से कांप गए और प्याली गिर गई। वो घबरा गई और माजरत करने लगी। सुफियान ने नरमी से कहा, फिक्र न करो, मुझे यूं समझो मैंने पी लिया। मरियम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सर झुकाकर चली गई। सुफियान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने सोचा, शायद दुनिया में हर दिल एक जैसा नहीं होता।
मरियम के जाने के बाद भी सुफियान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके दिल में एक अनजानी सी कैफियत थी। न वो पहले जैसी बेएतमादी थी, न मुकम्मल यकीन। वो सोच रहा था कि क्या वाकई कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा हो। बूढ़े शख्स ने उसकी खामोशी भांप ली, मुस्कुराकर बोला, बेटा, इंसान की पहचान वक्त और आजमाइश से होती है, बातों से नहीं। ये जुमला सुफियान के दिल में उतर गया। घर वापस आते हुए वो रास्ते भर सोचता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि अगर किस्मत उसे दोबारा मौका दे रही है तो वो इस बार जल्दबाजी नहीं करेगा। वो मरियम को आजमाएगा, मगर ऐसे कि उसे खबर भी ना हो। अगली सुबह वो उस रास्ते पर जा खड़ा हुआ जहां से मरियम रोज बाजार जाती थी। उसने अपनी जेब से एक कीमती अंगूठी निकाली जिसमें नायाब पत्थर जड़ा था और जानबूझकर जमीन पर गिरा दी। फिर एक दरख्त के पीछे छुपकर इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हों बाद मरियम आई। उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी तो वो रुक गई। उसने झुककर उसे उठाया, गौर से देखा। सूरज की रोशनी में वो चमक रही थी। उसने इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई न दिया। सुफियान की सांस थम गई। वो देखना चाहता था कि वो क्या करती है। मरियम ने अंगूठी को मुट्ठी में बंद किया और सीधी बाजार जाने के बजाय मस्जिद की तरफ मुड़ गई। वहां जाकर उसने इमाम साहब से कहा, यह किसी की गुमशुदा चीज लगती है, अगर मालिक मिल जाए तो उसे दे दीजिए और अगर न मिले तो इसे बेचकर इसकी कीमत गरीबों में तकसीम कर दीजिए। इमाम ने दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुम्हें अमानतदारी का अजर दे। ये सब देखकर सुफियान की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे दिल पर पड़ा बोझ हल्का हो गया हो। जब मरियम मस्जिद से बाहर निकली तो सुफियान सामने आ गया। उसने कहा, ये अंगूठी मेरी है और इसकी निशानी ये है। उसने निशानी बताई जो बिल्कुल दुरुस्त थी। मरियम ने फौरन अंगूठी उसे दे दी और बोली, अमानत मालिक तक पहुंच गई, अब मुझे इजाजत दीजिए। सुफियान ने मुस्कुराकर कहा, अब ये अंगूठी तुम्हारी है बतौर तोहफा, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम अमानत की कदर जानती हो। मरियम ने हैरत से उसकी तरफ देखा मगर खामोश रही। सुफियान उसे उसके घर तक छोड़ने गया। जब उसके वालिद ने दोनों को साथ देखा तो मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम दिल में कोई बात लेकर आए हो तो बिला झिझक कह दो। सुफियान ने अदब से कहा, जी हाँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। बूढ़े ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर कहा, मेरी एक शर्त है, तुम अपनी सारी जमा पूंजी इसके नाम कर दो। ये सुनकर सुफियान ने फौरन जवाब दिया, अगर वो मेरी शरीके हयात बन जाए तो मेरे लिए दुनिया की कोई दौलत इससे ज्यादा कीमती नहीं। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी नीयत आजमा रहा था, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा किरदार चाहिए था। यूं उनका निकाह तय हो गया। शादी की रात जब सब रस्में पूरी हो चुकी और सुकून छा गया तो सुफियान ने आहिस्ता से वही सवाल किया जो उसके बाप ने उसे सिखाया था, बताओ, एक सिक्का दो सिक्कों से बेहतर कब होता है? मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब वो एक सिक्का हलाल कमाई का हो और दो सिक्के हराम के हों, या जब एक सिक्का अक्ल से खर्च किया जाए और दो फजूल खर्ची में जाया हो जाए। ये सुनकर सुफियान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, ऐ रब, तेरे फैसले कितने अजीब और कितने खूबसूरत होते हैं। उसे महसूस हुआ जैसे बरसों बाद उसके दिल को सुकून मिला हो। वक्त गुजरता गया। सुफियान की तिजारत पहले से ज्यादा तरक्की करने लगी, मगर इस बार वो दौलत पर गुरूर नहीं करता था। वो जान चुका था कि असल खजाना समझदार साथी, सच्चा दिल और पाक नीयत है। मरियम उसके घर में बरकत का सबब बनी। उसकी दानाई और सादगी ने घर को जन्नत बना दिया। लोग कहते थे कि सुफियान की कामयाबी का राज उसकी बीवी की अक्ल और दुआ है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।